ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Guru Gauranga Gandharvika Gopichand Vallabh Ji and my spiritual master Shila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. Today I am going to read Srimad Bhagavad Gita and the brief of Srimad Bhagavad Gita, and I am going to share the screen. Srimad Bhagavad Gita is also known as Gitopanishad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishad in Vedic literature. Of course, there are many commentaries in English on the Bhagavad Gita, and one may question the necessity for another one. This present edition can be explained in the following ways. Recently, an American lady asked to recommend an English translation of Srimad Bhagavad Gita. But as far as I have seen, I will start from the second paragraph. The spirit of Srimad Bhagavad Gita is mentioned in Srimad Bhagavad Gita itself. And if we want to know the spirit, somebody can ask, what is the spirit of Srimad Bhagavad Gita? Then we can explain that it is given in Srimad Bhagavad Gita itself. It is just like this. If we want to take a particular medicine, then we have to follow the direction written on the label. We cannot take the medicine according to our own hints or the direction of a friend. It must be taken according to the direction on the label or the direction given by a physician. Similarly, Srimad Bhagavad Gita should be taken or accept as it is directed by the speaker himself. And who is the speaker? Speaker is Lord Shri Krishna. He is mentioned on every page of Srimad Bhagavad Gita as the Supreme Personality of Godhead, Bhagwan. Of course, the word Bhagwan sometimes refers to any powerful person or any powerful demigods, and certainly here Bhagwan designates Lord Krishna as a great personality. But at the same time, we should know that Lord Shri Krishna is Supreme Personality of Godhead, as is confirmed by all great acharyas, spiritual masters like Shankaracharya, Ramanujacharyas, and Madhvacharya, Nimbarka Swami, and Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many other authorities of Vedic knowledge in India. The Lord Himself also established Himself as the Supreme Personality of Godhead in the Srimad Bhagavad Gita, and He is accepted as such in the Brahma Samhita and all the Puranas, especially the Srimad Bhagavatam known as Bhagavad Puran. Krishnastu Bhagavan Swayam. Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is, directed by the personality of Godhead Himself. In 4th chapter,
of the Srimad Bhagavad Gita, Lord says, what he says? Lord says, Imam vivaswate yogam proktavan aham avyayam vivasana manave praha manur ikshvaku bravit evam parampara praptam emam raja sayo vidhu sa kale neha mahata yogo na stah parantapah sa evayam maya te dya yoga proktah पुरुत्पुरम तपः भक्तो सीमे सखा चेते रहस्याम हि इतम उत्तमम. Bhakto si me sah. Here the Lord informed Arjun that this system of yoga, the Srimad Bhagavad Gita, was the first spoken to the sun god, and the sun god explained it to Manu, and Manu explained it to Ikshvaku, and in that way, by disciplic succession, one speaker after another, this yoga system has been coming down, but in the course of time, it has become lost. Consequently, the Lord has to speak it again, this time to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. In Hindi. इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता का कुछ लोग चाहते होंगे कि आखिर भगवद गीता में है क्या, उसको हमें किस तरह से लेना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है श्रीला प्रभुपाद ने. ये एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से हम लोग जो है जब मेडिसिन कोई प्रॉब्लम होता है हमको जैसे, तो हम लोग डायरेक्टली जा कर के अगर हम मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं मेडिसिन, है ना, तो क्या होता है कभी कभी हमको उसका साइड इफ़ेक्ट भी फेस करना पड़ जाता है ना. तो उसमें बताया है कि जैसे कि तो हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन को डायरेक्टली ना लेकर के क्या करना है, या तो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, या फिर उस मेडिसिन पे जो उस पर कुछ लेबल लिखा होगा, उस पर जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और कैसे लेना है, इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो उसको हमें फॉलो करना होगा, तो वो हमको फ़ायदा करेगा, नहीं तो हमको नुकसान भी कर सकता है ना. तो ठीक वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान लॉर्ड कृष्ण ने बोला है. तो हमें जैसा उन्होंने बताया है, अर्जुन को मतलब इंडिकेट यानी कह सकते हो अर्जुन को निमित्त बनाते हुए पूरी मानवता, पूरी मानव समाज को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि हमको अपने जीवन, मनुष्य जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, है ना, और किस किस सिचुएशन में मतलब अपने जीवन को हम परफेक्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं. यहाँ तक कि बहुत सारा हम लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है और उस प्रॉब्लम में हमें अपने आप को किस तरह से एलिवेटेड रखना है ना, कि ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, या फिर सुसाइडल टेंडेंसी आने लगी और सुसाइड कर लिया, लाइफ को फिनिश कर लें तो फिर हमारा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा, ऐसा सोचने लगे. ऐसा नहीं. श्रीमद् भगवद गीता, भगवान जब अर्जुन कहते हैं ना कि भगवान मुझे लास्ट में जब वो एकदम सामने देखते हैं कि अब तो मेरे सारे अपने भाई बंधु मेरे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और मैं कैसे इनको मारूं, क्योंकि वो जानते थे कि ये युद्ध में सारे मारे जा सकते हैं, है ना. तो उनके मन में खेद हुआ और उन्हें लगा कि इससे तो अच्छा है कि इन सबको मार के मैं राज्य और सुख भोगूं, वो तो मैं नहीं भोग पाऊंगा, क्योंकि वो एक साधु हृदय थे, है ना, इसीलिए भगवान को प्रिय थे और भगवान के आज्ञाकारी भी थे. भगवान को बहुत ही प्रेम करते थे, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे, इसलिए भगवान के बहुत प्रिय थे. तो वो सोचने लगे कि ये सब कुछ करके मुझे मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन मैं मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. लेकिन उस समय में जब अर्जुन, पहले तो भगवान से थोड़ा समझाया, लेकिन अर्जुन ने जब अपना गांडीव छोड़ के पीछे जाके रथ के बैठ गए, मतलब पूरी तरह से उन्होंने क्या मतलब कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, हार गए जैसे कहते ना, तब भगवान ने अर्जुन को ये इंस्ट्रक्शंस दिया. ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन में बहुत सारा हम लोग जीवन में परेशानियों से जूझते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, बहुत सारी वैरायटी टाइप के प्रॉब्लम्स. छोटे हैं तो स्कूल में फ्रेंड्स के बीच में, बड़े हैं तो अलग टीनेज के अलग प्रॉब्लम्स होता है, कॉलेज में जाते हैं अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना होता है. देन
रिलेशनशिप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, देन गृहस्थ लाइफ में जाते हैं या हम संन्यास आश्रम को या वानप्रस्थ को ग्रहण करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स होता है। इस तरीके से मनुष्य जीवन जो है अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से, परेशानियों से घिरा हुआ है। बिजनेस करते हैं तो उसमें अलग प्रॉब्लम, जॉब करते हैं तो उसमें अलग तरीके का प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम में जब कई बार मनुष्य हिम्मत बांध के लड़ता रहता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से कोई मार्ग नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है, तो उसको श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने हमारे लिए ये सबसे अच्छा मार्ग बनाया है। अगर हम इसको शुरू से ही अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को या अपने खुद स्वयं पढ़ते हैं, तो हमको हर पग पे, जिसे कहते हैं, हर स्टेप पे भगवान हमको मार्गदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। हमारे हृदय में बैठे हुए हमको डायरेक्शन देते हैं कि तुमको अब क्या करना है, सिचुएशन में क्या करना है, इस तरह से। तो यहाँ बता रहे हैं मेनली क्या इम्पोर्टेंस है कि श्रीमद् भगवद गीता को हमको एज इट इज़ लेना है ना, और किसकी बात सुनना है, क्योंकि जिसने लिखा है उसी की बात सुनना है, क्योंकि उसको पता है कि इसका एसेंस क्या है ना, भगवान की या फिर आचार्यों की, गुरु की, आचार्य की, और या भगवान की, है ना। तो इन सेक्शंस को फॉलो करना है हमें। तो अब बता रहे हैं कि भगवान स्वयं को, आप देखेंगे भगवद गीता के हर पेज पे आपको ये मिलेगा कि भगवान स्वयं को कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कई बार लोग सोच सकते हैं कि कैसे अपने आप को भगवान कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रूफ। तो प्रूफ कैसे मिलता है, जब हमको ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे आप देखते हैं ना कि जब आप देखते हैं कि डिस्कवरी किसने की, नोबेल प्राइज़ मिलता है, देन बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं किसी पर्टिकुलर लॉ को या फिर डिस्कवरी को जब कहना चाहिए ऑथेंटिक ये दे देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, मतलब इसका ये सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, तो वह इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक वैसे ही शास्त्रों में जो हमारे बड़े आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो लोग सभी, और वैदिक लिटरेचर हमारा सभी सारा कुछ ये डिक्लेयर कर रहा है बार बार कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इसे हमें मानना चाहिए। फिर भगवान स्वयं कह रहे हैं, किसमें, भागवतम में भगवान कह रहे हैं कि कृष्णस्तु स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, सुप्रीम। पुराण कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता कह रहे हैं, और हमें किसका प्रमाण चाहिए। फिर स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब अर्जुन उसके बाद भी नहीं समझ पाता तो हमें बताते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान तुझे आज मैं दे रहा हूँ ना, ये सब बहुत पहले मैंने किसको दिया था, सन गॉड को, किसको, सन गॉड को दिया था सबसे पहले ही मैंने, जो क्या नाम है उनका, सन गॉड विवासन, आई थिंक, ओके, हियर फ्रॉम द योगा भगवत स्पोक टू सन गॉड, द सन गॉड एक्सप्लेन इट मनु को कहा उन्होंने, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस तरीके से ये ज्ञान जो है नीचे धीरे धीरे आया, मतलब परंपरागत आया। और उसके बाद जैसे जब एनिहिलेशन होता है ना, प्रलय काल होता है, तो सारा समस्त ज्ञान लुप्त हो चुका था, और अब ये फिर ज्ञान, ये मैं तुझे वैसा ही ज्ञान वो दे रहा हूँ। तो ये स्वयं भगवान है, इसको हमें विश्वास करना है, विश्वास करके इनको एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में इस तरह से लेना है जैसे कि ही इज़ आवर, कहते हैं ना भगवद गीता में लिखा है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, सुहृद सब भूता नाम, सभी भूतों के वो सुहृद है। हरे कृष्णा। और सभी अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे अगर भगवान को अपने हृदय में बिठा के उन्हें अपना मानेंगे। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग धविक गोपीजन वल्लभ जीव समस्त साधु गुरु वैष्णवास की जय। सब धाम जय श्री राधा कृष्ण जी की, गोवर्धन जी की, गिरी गोवर्धन जी की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, शिवपुरी धाम की जय, श्री नवदीप धाम की जय, श्री उच्चा गाँव की जय, श्री बरसाने धाम की जय, जय श्री गुरु गौरांग मठ की जय, श्री चैतन्य शाश्वत इंस्टीट्यूट की जय, श्री भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की जय, जय समस्त नवदीप धाम, श्री पुरी धाम, श्री वृंदावन धाम की जय, जय श्री बरसाने धाम, जय श्री गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री गुरु पंचतत्व की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदाई तुलसी देवी